Hello students, Don Bosco School Basti welcomes you all in its online classes specially prepared for class 12. Students, I would like to tell you all that in your course curriculum, we are going to discuss today about the subject English literature. And in English literature, it comprises two books, Flamingo and Vistas. So today we are just going to discuss about the book and its chapters from Flamingo. Dear students, if we talk about the contents of this book, Flamingo, it is divided into two parts. One part is related to prose and another one is related to poetry. So today we are just going to know about the prose section and we will start our first chapter of Flamingo prose section, and that is named as The Last Lesson, and it is written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer, and his tenure is in between 1840 to 1897. And this particular story, The Last Lesson, was introduced by Alphonse Daudet. We will see that what this chapter wants to say. Okay, students, before moving towards the explanation of this chapter, let us find out what the last lesson chapter is about. Just have a brief introduction of this chapter. The last lesson, this chapter, this part is written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870 when the Persian forces under Bismarck attacked and captured France. The French districts of Alsace and Lorraine went into Persian hands. The new Persian ruler discontinued the teaching of French in the school of these two districts. The French teachers were asked to leave. This chapter is all about feeling of the characters M. Hamel as a teacher and a little boy, friends, even including other peoples who got affected, and also this chapter comprises the last chapter taken by Mr. M. Hamel in French. Okay, students, please pay your attention towards the explanation of the chapter named The Last Lesson. The last lesson का मतलब होता है आखिरी पाठ. We will discuss this chapter passage wise, just in English and then in Hindi, so that it become easy to understand that what the passage wants to say. So here we go. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So, this statement was given by Little Friends that we had already discussed earlier. और उसने कहा कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए थोड़ा देर से चला और मुझे इस बात का डर था कि मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टीचर थे मिस्टर एम हैमल, उन्होंने कहा था कि वो हमसे कल पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल करेंगे. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling.
एक पल के लिए तो मैंने भागने और वो पूरा दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप थी। जंगल के किनारे जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, और जो सॉ मिल होती है, सॉ मिल मीन्स आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे जो खुला हुआ कंपाउंड था, एरिया था, वहाँ पे प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, वो अपना अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rules for participation, but I had the strength to resist and hurried off to school. उन पर्शियन सोल्जर्स की जो ड्रिल थी, जो उनके अभ्यास थे, ये सब पार्टिसिपल के जो रूल्स थे उनकी अपेक्षा या उनके कंपैरिजन में अच्छा लगने वाला था, लेकिन मेरे अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति थी। उन सब के बावजूद, इन सब को देखने के बावजूद मैं अपने स्कूल की तरफ भागा, मैं स्कूल की तरफ दौड़ा, and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? लिटिल फ्रेंड्स कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड मींस एक ऐसा सेक्शन जहां से न्यूज टेलीकास्ट की जाती थी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ खड़ी थी, और पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। हमारे हारे हुए युद्ध के बारे में, हमारे जो ड्राफ्ट्स थे उनके बारे में, हमारे कमांडिंग अफसर जो आ रहे थे उनके ऑर्डर्स के बारे में। और मैंने बिना रुके खुद ही सोचा कि अब इस समय क्या बात हो सकती है, ऐसा कौन सा न्यूज़ इस बुलेटिन बोर्ड पर आ गया है जिसको देखने के लिए इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get your school in plenty of time." और फिर जब मैं जितना तेज भाग सकता था मैं उतना तेज भागा। वहीं पर लोहार वॉचर जो अपने असिस्टेंट के साथ, अपने सहायक के साथ वहां पर खड़ा था, जो बुलेटिन बोर्ड पर चीजों को देखकर पढ़ रहा था, वो पीछे से चिल्लाया कि इतनी तेज मत भागो बच्चे। हियर बब इज अ वर्ड यूज्ड ओवर हियर। बब मींस बच्चा। तो इतनी तेज मत भागो बच्चे, तुम अपने स्कूल में काफी समय में जा सकते हो, तुम अपने स्कूल में आसानी से पहुंच सकते हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मैंने सोचा कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं हाफता हुआ, पेंटेट करता हुआ मिस्टर एम हैमल के गार्डन तक पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, and opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अभी आम दिनों में स्कूल्स कैसे होते हैं इनको डिस्कस करते हुए फ्रेंड्स ने कहा कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो जाती थी स्कूलों में, गलियों में स्कूल से आती हुई आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे डेस्क का खुलना, उनका बंद होना, और साथ मिलकर यूनिसन में
एक साथ मिलकर अपने लेसन को रिपीट करना, दोहराना, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए अपने लेसन्स को रिपीट करना, हमारे साथ हमारे कानों के ऊपर बहुत ज़्यादा समझने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए जो बीच बीच में हमारे टीचर्स अपनी स्टिक्स लेकर मेज पर पटकते थे, मेज पर बजाते थे, ये सारी चीज़ें अक्सर रेगुलर इंटरवल्स पर स्कूल में हुआ करती थी पहले के टाइम। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन आज सब कुछ पहले जैसा नहीं था। आज सब कुछ शांत था। मैं हमेशा बिना देखे हुए अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए आवाज़ के भरोसे रहता था कि आवाज़ सुनते सुनते यहाँ आओ, जैसे बीच में बच्चों को बुलाते हैं उनके फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के भरोसे रहता था। लेकिन उस दिन सब कुछ संडे की क्लासेस की तरह बिल्कुल शांत था। संडे को अक्सर जब स्कूल नहीं होता है तो स्कूल का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत शांत होता है। बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट उस दिन वहाँ पर क्रिएटेड था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." सबसे पहले खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो मुझसे पहले ही वहाँ अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुके थे, और उसके बाद एम हैमिल को देखा जो हमारे टीचर थे। वो एक बहुत डरावना लोहे का डंडा लिए कमरे में अप एंड डाउन कर रहे थे, मीन्स इधर उधर घूम रहे थे। और इन सब के बावजूद मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना उस समय ब्लश्ड था, कितना शर्मिंदा था और कितना ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ जितना मैं डर रहा था। एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़े ही काइंडली, दयालुता के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपनी जगह जाओ छोटे से फ्रेंड्स, और हम तुम्हारे बिना ही आज का लेसन शुरू करने रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, frilled shirt. तो मैं अपनी बेंच के ऊपर कूदा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। मेरा जो डर था वो थोड़ा कम ही हुआ था कि मैंने अपने टीचर को उनके हरे कोट में और उनकी झालर वाली शर्ट में, फ्रिल्ड शर्ट में देखा। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days? अभी मेरा डर थोड़ा कम हुआ था कि मैंने अपने टीचर को उनके ग्रीन कोट में, उनकी फ्रिल्ड शर्ट में, झालर वाली शर्ट में, उनकी काली मखमली टोपी जो छोटी सी थी उनको पहने हुए देखा। वो सभी एम्ब्रॉयडर्ड थी, सभी चीज़ों पर कढ़ाई हो रखी थी, और जिनको अक्सर कर मिस्टर एम हैमिल जो हमारे टीचर थे वो इंस्पेक्शंस के दौरान, निरीक्षण के दौरान, या फिर जब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हमारे लिए होता था, इनाम वाले दिनों को छोड़कर वो ऐसे ड्रेस में कभी नहीं आते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty,
The village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. इन सब के अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा अजीब और गंभीर नज़र आ रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि उन बेंचों पर जो पहले कभी हमारी क्लास में हमेशा खाली पड़े रहते थे, उन बेंचेस पर, क्लास की लास्ट बेंच पर, बैक बेंच पर गांव वालों को चुपचाप बैठे हमारी तरफ देखते हुए पाया। और उनमें ओल्ड हाउसर थे, बूढ़े हाउसर थे, अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी थी उन्होंने। वहाँ पर हमारे एक्स मेयर अवेलेबल थे, वहाँ पर हमारे एक्स पोस्ट मैन जो थे वो अवेलेबल थे, और इन सब के अलावा भी और कुछ लोग वहाँ पर थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. उस दिन उस समय हमारी क्लास में जो भी लोग बैठे हुए थे वो हर एक उदास दिखा। और हाउज़र की बात करें तो वो एक पुरानी सी छोटी सी किताब जो प्राइमर की हुआ करती थी, जो प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो किताब लेकर वहाँ पर बैठे हुए थे। और उस बुक के किनारों को थपथपा कर उसने खोला और अपने घुटनों पर रखकर एक नज़र उस बुक की तरफ डाली। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in a school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow, and this is your last French lesson. I want you to be very attentive." फ्रेंड्स कहता है कि अभी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, क्लासरूम की सिचुएशन, बाहर का माहौल, इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने उसी गंभीर और बड़ी ही भद्र आवाज़ में जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी, बड़े पोलाइट वे में, बड़े ही मीठे शब्दों में उनको प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आज यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मेरी तरफ से तुम्हें मिलेगा। बर्लिन में अल्सस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का ऑर्डर आया है, और जो नए टीचर हैं वो आपके पास कल आ रहे हैं, और आज का जो लेसन है ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, आखिरी पाठ है, और मैं चाहता हूं कि तुम सभी एकदम सावधान हो जाओ और इसको सावधानी से सुनो। अटेंटिव मीन्स सावधान होना। तो कहते हैं कि आप सभी बिल्कुल सावधान हो जाइए और मेरे इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनिए। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. और इस तरह के शब्द की कल से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब आगे आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। इस तरह के शब्द सुनते ऐसे थे मेरे दिमाग में आने के लिए कि इन शब्दों का प्रभाव बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के समान था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था दूर कहीं बिजली गिरी हो। ओह! तो उसने सोचा कि ये जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, और शायद टाउन हॉल पे मेरे आते समय जो भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ ने बुलेटिन बोर्ड पर इसी न्यूज़ को पढ़ने के लिए अपने आप को खड़ा रखा था कि हमारे यहाँ अल्सस में और हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर फ्रेंच
लेसन्स की क्लासेस अब नहीं होंगी, वहाँ पे फोर्सफुली सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की लैंग्वेज जर्मन पढ़ाई जाएगी। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel, too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. वो छोटा सा बच्चा फ्रेंच जो था वो सोचता है कि क्यों मैं नहीं जानता कि ये लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है, मुझे नहीं पता कि ये लिखा कैसे जाता है, मुझे और नहीं सीखना चाहिए, मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे चीज़ें आती नहीं हैं इसलिए मुझे वहीं रुक जाना चाहिए और इन चीज़ों को मुझे समझना चाहिए। और वो थोड़ा आह भरते हुए कहता है कि मेरे लेसन्स को न सीखने का मुझे बहुत अफसोस था। उस दौरान जब लेसन्स को सीखने की टाइमिंग थी तब मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता था, सार पर फिसलते हुए खेलता था। मेरी जो किताबें थीं जो थोड़ी देर पहले तक मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, बहुत समस्या लग रही थी, जो ले जाने में मुझे काफ़ी वज़न महसूस होती थी, उनका वज़न मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। मेरी ग्रामर की बुक, मेरे सेंट्स का जो हिस्ट्री है, उनकी जो इतिहास है, वो जब ये सब उस समय मेरे पुराने दोस्त बन गए थे और अब शायद मैं उनको छोड़ नहीं सकता था और एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये जब विचार मेरे मन में आया कि मिस्टर एम हैमिल मुझसे दूर जा रहे हैं, मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनके डंडे का जो डर था, उनके जो अक्खड़पन का था, जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, इन सभी चीज़ों का डर जो मेरे मन में था, मैं उन सबको भूल चुका था। मुझे उनके डंडे का डर मेरे मन में नहीं रह गया था। मैंने ये भुला दिया था कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने क्रैंकी हैं। यहाँ पर क्रैंकी का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, अनुशासन प्रिय। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो फ्रेंड्स, मिस्टर एम हेमल को बोलता है पुअर मैन, वो बेचारा आदमी। वो कहते हैं कि तब उसको ये बात समझ में आई कि ये जो लेसन है इसके रिस्पेक्ट में ही, इसके सम्मान में ही था ऐसा कि संडे को पहनने वाले कपड़े मिस्टर एम हेमल ने उस दिन पहन रखे थे, या किसी स्पेशल ओकेजन पर पहनने वाले कपड़ों को उस लास्ट लेसन के ओकेजन पर मिस्टर एम हेमल ने पहन रखा था। Here I drop my words for this first session, and I would like to request you all to subscribe our YouTube channel so that we can give you the better options, the coming up videos for your study, so that you can get a better idea to understand it. And please put your comments regarding the part in the comment box, and once again please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can get our further notifications time to time. Have a nice day ahead.